Okay, so good morning, everyone. My name is Manish Verma, and I have a firm that goes by the name of Digicart India, and we are sellers on Amazon and Flipkart as well as our own website. And today, the session I have been taking multiple sessions on the e-commerce and how to use it, how to list, how to increase sales. They can be seen in my YouTube channel. They have helped people. That's what I've been told. And today we are going to talk about how to decode the payment report of Amazon that comes every week or regularly to the seller account of people who are selling on Amazon. So before I start, I just wish to know, in case someone wants me to answer a specific question they may have. If there is a specific question that people might have, I will take it now and I'll see if I can cover that in the agenda. Okay. So no question, maybe it will come later. So I'll tell you what happened with us. जैसे Amazon का पेमेंट रिपोर्ट हमारे पास भी आता था तो हम भी काफी परेशान रहते थे उस रिपोर्ट से. हमें समझ नहीं आता था, हम उसको डिकोड नहीं कर पाते थे. We were not sure what to do with that Amazon का पेमेंट का रिपोर्ट because it was very complex for us to understand. So we did something about it, and what we did is something that Sudeep ji, I'll share the video recording later. So we are taking the video recording ourselves. We'll share it later with you. Don't worry. So हम लोगों ने उसको जब बहुत गौर से देखा उस रिपोर्ट को, वो काफी कॉम्प्लेक्स होती थी पेमेंट रिपोर्ट, और मैंने कई लोगों से बात करी, कई सेलर से बात करी, उनको समझ भी नहीं आती थी कि हमारा पैसा कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है. तो हमने उसको अच्छे से डिकोड किया, अच्छे से डेटा एनालाइज किया उसका. और जब हम उसके अंदर थोड़ा डीप उतरे, सिर्फ हमने पेमेंट रिपोर्ट के साथ ऐसा नहीं किया, वी डिड इट फॉर मेनी अदर रिपोर्ट्स जो अमेजोन का होता था. हमने काफ़ी रिपोर्ट्स के साथ ऐसा किया, और तब हमारे को ये लगा दैट टू बेनिफिट ऑल द ई कॉमर्स सेलर्स we should do something, and this is where and when we started with Ecomically. It is a short form of economically, but because it deals with e-commerce, so we named it Ecomically. So उसके अंदर हम लोग ये सब चीज़ों को आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं to make it much easier for the people, for the e-commerce sellers to be able to decipher जो भी Amazon या Flipkart से आपकी रिपोर्ट्स आती हैं, और उनसे आप बेस्ट बिजनेस डिसीजन कैसे ले सकते हैं. सो एजेंडा ये रहेगा कि हम Amazon की पेमेंट रिपोर्ट के नंबर 1 अंडरस्टैंड करेंगे वेरियस कंपोनेंट्स क्या होते हैं, और उसके बाद वहां से निकालेंगे SKU वाइज प्रॉफिटेबिलिटी, और कुछ अगर निकल सकता है वो उसके अंदर हम देखेंगे. So let me talk about very quickly about us. So we are the DigiDesign Group, wherein we are a digital marketing agency, and Digicart India. We are selling roughly around 19-20,000 units every month on Amazon, Flipkart, and our own website. This slide is a little old. Ecomically, जैसे मैंने आपको बताया, we started to provide support to the group on technology for warehousing, logistics, sales, and analytics. And True Turtle is the brand जो हमने e-commerce platform अपनी website पे अभी launch किया है recently. So Digicart India, we have come a long way, and we have kept it very small and minimal. Roughly around with 3.5 people plus me, we are having our own 4 managed warehouses. We are working through Amazon and Flipkart warehouses also. We are premium sellers with Amazon, platinum sellers with Flipkart. And just I'm showing a snapshot of the business on 19th of March for you on Amazon and Flipkart total, wherein you can see that we have sold over around 550 to about 600 units per day that we have sold there. Coming back, पेमेंट रिपोर्ट की हम बात करेंगे. दिस इज द Amazon सेलर अकाउंट का जो होम पेज जो आप लोग देखते हो, उसके अंदर से ये रेड मार्क, मेरे जो इंपॉर्टेंट पोर्शंस थे वो मैंने थोड़े रेड मार्क कर दिए हैं अपने सेलर अकाउंट के. अगर आप लेफ्ट में जाके मेन्यू पे सिलेक्ट करते हो, क्लिक करते हो, फिर आप नीचे जाके रिपोर्ट्स पे आते हो और पेमेंट्स पे आते हो,
हम सबसे पहले पेमेंट रिपोर्ट यहाँ से निकालते हैं, अगली स्लाइड में देखेंगे। और उसके बाद जब यहाँ पे हम पेमेंट पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट क्या होता है। अगर आपको किसी को भी कोई भी सवाल या कुछ क्वेश्चन पूछना हो या क्लैरिफिकेशन लेनी हो तो यू कैन स्टॉप मी वेन एवर यू वांट। दिस इज द स्क्रीन दैट कम्स जब भी हम वो पेमेंट वाला बटन दबाते हैं, मेन्यू पे जाके, रिपोर्ट्स पे जाके, पेमेंट पे जाके। तो दिस इज द स्क्रीन दैट कम्स, द पेमेंट डैशबोर्ड दैट कम बाय डिफॉल्ट। अगर आप देखेंगे पेमेंट्स डैशबोर्ड के अंदर ये स्टेटमेंट व्यू दिख रहा है। ये स्टेटमेंट व्यू आपको बाय डिफॉल्ट सबसे पहले दिखेगा। तो ये इमीडिएटली दिखाता है कि भाई 28 जून से जो अभी आपका सेटलमेंट पीरियड चल रहा है, यानी आज जैसे 1 जुलाई हो गया, तो हमने जैसे वीकली सेटलमेंट ले रखा है एज अ सेलर, एज अ प्रीमियम सेलर वी वर गिवन एन ऑप्शन कि आप हमसे डेली सेटलमेंट ले लीजिए। हमने कहा नहीं, हमारे को वीकली सेटलमेंट चाहिए बिकॉज वी नीड टू प्रोसेस जो हमारे पास पेमेंट रिपोर्ट्स आती हैं, एंड वी कैनॉट प्रोसेस 700 रिपोर्ट्स इन अ ईयर, क्योंकि 365 डेज में 2 रिपोर्ट आएंगी। फिर अगर 2 पेमेंट आएंगी हमारे को, एक सीओडी की और एक इलेक्ट्रॉनिक की। तो इलेक्ट्रॉनिक और सीओडी इनके बैलेंसेस होते हैं, ये आप लोगों ने देखे होंगे। अकाउंट टाइप इलेक्ट्रॉनिक है या सीओडी है, सेटलमेंट पीरियड कौन सा चल रहा है, तो हमने वीकली चला रखा है। उसके बाद जो ये स्टेटमेंट व्यू तो डिफॉल्ट आता है, पर हमारे को जाना है ऑल स्टेटमेंट्स व्यू में। जब हम ऑल स्टेटमेंट्स व्यू में जाते हैं तब हमारे पास इस टाइप की एक डैशबोर्ड निकलता है। ये वाला जो डैशबोर्ड है, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो वीकली आपको हमारी स्टेटमेंट्स दिख रही होंगी। ये इस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक मैंने सिलेक्ट कर रखा है अकाउंट टाइप। 21 जून से 28 जून की एक सेटलमेंट है, 14 जून से 21 जून की एक सेटलमेंट है, लाइकवाइज हर वीक की एक सेटलमेंट है, एज यू कैन सी हियर। इसमें होता क्या है कि आपके सेटलमेंट पीरियड जब भी ओवर होता है, आपको 2 पेमेंट्स आती हैं। एक पेमेंट जो होती है वो सीओडी की होती है, कैश ऑन डिलीवरी वाली, और एक होती है जो इलेक्ट्रॉनिक की होती है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक वाला इस टाइम पे सेट है। इस व्यू में अगर आप देखेंगे फॉर दिस 21 जून से 28 जून का जो ये लाइन है, ये जो रो है, उसके अंदर एक आपके पास ऑप्शन होता है कि आपको आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं, डाउनलोड एक्सएमएल या डाउनलोड फ्लैट फाइल। तो हम इसमें डाउनलोड फ्लैट फाइल करेंगे, और यहाँ से मैं आपको ले जा रहा हूँ कि डाउनलोड फ्लैट फाइल जो है मैंने ऑलरेडी वो डाउनलोड करके रखी है। हम देखते हैं कि वो डाउनलोड फ्लैट फाइल वो हमारे को कैसे दिखती है। तो ये जो डाउनलोड फ्लैट फाइल जब हम करते हैं वो एक टीएक्सटी फॉर्मेट में हमारे पास आता है। इसको हमारे को एक्सेल में खोलना है। कैसे खोलना है, इसको हम राइट क्लिक करके ओपन विद अगर करेंगे, एंड ओपन विद में अगर हम एक्सेल पे कर देंगे तो ये जो टीएक्सटी फाइल है आपकी एक्सेल में खुल जाती है। आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल। It is. कैन somebody tell me if my screen is visible to all? Yes, it is visible. Okay, thank you. So this is the file that comes, जैसे ये आती है, हमने इसको एक्सेल में ले लिया जो टीएक्सटी की फाइल थी। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूंगा जिससे आप लोग देख पाएं, और मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, सबसे पहले सेटलमेंट आईडी होती है। सेटलमेंट आईडी के अगेंस्ट एक स्टार्ट डेट और एंड डेट होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 14 जून से 21 जून का सेटलमेंट दिख रहा है, और इन्होंने मेरे खाते में पैसे दिए हैं 23 जून को। दिस इज व्हाट इट सेज। और इन्होंने मेरे को लगभग 18,21,616 रुपीज इस सेटलमेंट में दिए थे मुझे। एंड एज यू कैन सी दैट इट टॉक्स अबाउट ट्रांजैक्शन टाइप कौन सा रहा है। I will just put a data filter so that we can see it easily. तो ये लोग पेमेंट रिपोर्ट में आपको ट्रांजैक्शन टाइप्स देते हैं। ट्रांजैक्शन टाइप में बहुत सारी फील्ड्स होती हैं, इंक्लूडिंग ऑर्डर एंड रिफंड। ऑर्डर आईडी देते हैं ये, मर्चेंट की ऑर्डर आईडी देती हैं, जिसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में 95% केसेस में ऑर्डर आईडी इक्वल टू मर्चेंट ऑर्डर आईडी।
देन दे ऑल्सो गिव यू द शिपमेंट आईडी, कौन सी शिपमेंट से वो डिलीवर हुआ था आपका। देन ऑफ कोर्स अगर मार्केट प्लेस का नाम अगर आप .com पे बेच रहे हैं या .in पे बेच रहे हैं उसके हिसाब से चेंज हो जाता है। AFN मीन्स कि ये FBA से फुलफिल्ड है, और ये ट्रांजैक्शन जो है ये ट्रांजैक्शन की पोस्टेड डेट है। ये सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ आती है वी कॉलम में SKU। मैंने अभी अपने SKU के नाम इसमें चेंज कर दिए हैं, जिससे मैं आप लोगों को आसानी तरीके से दिखा सकूं कि मैंने यहाँ पे जितने भी मेरे मल्टीपल SKUs थे वो सिर्फ SKU 1, SKU 2 या SKU 3 करके मैंने छोड़ दिए हैं, बिकॉज दैट इज प्रोप्राइटरी डेटा, आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू शेयर दैट। सो अगर आप जैसे देखेंगे यहाँ पर ये दिखा रहा है X और Y कॉलम में प्राइस टाइप क्या है, यानी आपको प्रिंसिपल कितना मिला, उस पे प्रोडक्ट टैक्स कितना लगा, शिपिंग कितना था, शिपिंग टैक्स कितना था। तो अगर आप देखेंगे मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ कि इवन इफ यू सी दीज टू आइटम्स टुगेदर, इनको आप टोटल कर लेंगे प्रिंसिपल और प्रोडक्ट टैक्स, यानी ये प्रोडक्ट टैक्स वो है जो आप कस्टमर से GST ले रहे हैं जो आपको सरकार को जमा कराना है। So the total becomes 2789. This is what my product is selling for. और कई बार जैसे 40 रुपीज एक्स्ट्रा शिपिंग Amazon जो है कस्टमर को लगाता है, हालांकि वो बाद में उसको डिस्काउंट भी दे देता है। तो ये अगर 40 रुपीज ऐड करते हैं तो ये 2829 का बिक रहा है। देन ऑफ कोर्स प्रिंसिपल के ऊपर 1% जो है मेरे से ये लोग TCS लेते हैं, और 1% ही जो है ये TDS भी लेते हैं मेरे से। तो ये मेरे को कार्ड देते हैं, हालांकि इसका प्रोडक्ट रियलाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये एक तरीके से मेरी ही पॉकेट में आया है। बट मेरी जो GST की सरकारी पॉकेट है उसमें 23 रुपये गया है, 23 रुपीज 64 पैसा, और जो मेरी सरकारी पॉकेट है TDS की उसमें ये 23 रुपीज 64 पैसा गया है। देन सेम ऑर्डर के ये बहुत सारे चार्जेस हैं, पिक एंड पैक फी जैसे इन्होंने लिया है, और जो है इन्होंने ये उसका CGST या SGST काटा है। वेट हैंडलिंग जो लिया है ये उसका उन्होंने CGST या SGST काटा है। ये जो उन्होंने कमीशन लिया है उसका उन्होंने IGST काटा है, क्योंकि कमीशन हमेशा बैंगलोर, जो उनका Amazon बैंगलोर का ऑफिस है, जो वहीं से ही कमीशन जो है बिल होता है। और एक फिक्स क्लोजिंग फी है वो भी बैंगलोर से बिल होता है, उसका उन्होंने IGST काटा है। तो अगर आप देखें तो एक, और ये इन्होंने ये देखिए रिवर्सल दे दिया है शिपिंग का, पर ये जो है ये AG कॉलम में आ रहा है। तो ये AJ कॉलम तक इनकी इनकी जो है ये शीट चलती है। और अगर आप देखेंगे तो एक ऑर्डर के लिए इन्होंने हमारे को क्या दे दिया है, ओनली फॉर वन ऑर्डर दे हैव गिवन अस दीज मेनी रोज। तो एटलीस्ट उन्होंने 15 के करीब जो है इन्होंने लाइन आइटम्स बना दिए हैं एक ऑर्डर के लिए। तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे को ये समझना कि भाई इसको मैं कैसे समझूं कि ये मैंने इतना प्रिंसिपल कलेक्ट किया। अगर आप देखेंगे तो ये जो मेरा प्रिंसिपल है ये माइनस पिक एंड पैक फी, माइनस वेट हैंडलिंग फी, माइनस कमीशन, माइनस क्लोजिंग फी। सो दिस इज द अमाउंट। ये जो 2208 आपको आपको नीचे दिख रहा होगा, ये 2208 जो मेरी स्क्रीन में सबसे नीचे दिख रहा होगा, दिस इज द एक्चुअल अमाउंट जो आपको Amazon की तरफ से वापस मिल रहा है। और इस अमाउंट के अंदर अगर आप विदाउट टैक्स अपना परचेज कॉस्ट माइनस करेंगे तो आपको SKU की प्रॉफिटेबिलिटी पता चल जाएगी कितनी आ रही है। इसमें कोई सवाल है, किसी को कुछ पूछना है? क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, अगर कोई सवाल है तो पूछ लीजिए आप। एनी क्वेश्चन इन देयर? सर ये फिक्स क्लोजिंग फी 47 रुपीज कैसे आता है? ये तो शायद कम होना चाहिए, लाइक ये तो एक फिक्स्ड है कैन यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ बिकॉज आई कांट सी ना। यू? या सर, दिस इज सुदीप। हाँ सुदीप जी। हाँ सर, यहाँ पे फिक्स क्लोजिंग फी का जो 47 रुपीज है, जी ये कैसे मतलब कैलकुलेट हुआ है? सर, ये मतलब कैलकुलेट नहीं हुआ। अगर आप जो Amazon का जो फी कैलकुलेटर होता है, अगर उनका आप जो पूरा जो प्राइसिंग चार्ट है अगर आप वो देखेंगे तो 1000 रुपये से जो ऊपर की चीज़ है मेरी कैटेगरी में उस पर वो 47 रुपीज फिक्स लेते हैं। ओके, अच्छा, ये कैटेगरी वाइज डिफाइंड है सर? वो कैटेगरी कोई वाइज भी हो सकता है या प्राइस वाइज भी हो सकता है सर। ओके सर, अंडरस्टूड, थैंक यू सर। सो बेसिकली मेरे को 4 चार्जेस लग रहे हैं। एक तो FBA पिक एंड पैक का लग रहा है मेरे को,
एक वेट हैंडलिंग लग रहा है, एक कमीशन लग रहा है और एक फिक्स क्लोजिंग फी लग रहा है। तो ये जब मैं माइनस करता हूँ जो प्रिंसिपल है, क्योंकि प्रोडक्ट टैक्स हालांकि अमेजोन मेरे को कलेक्ट करके दे रहा है, बट वो मेरे को जीएसटी भी भरना है। तो मैं अगर उसको नहीं मानूंगा मैं, क्योंकि जीएसटी से मेरा कोई प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट नहीं होगा, टैक्स मेरे को साइड रख के प्रॉफिट लॉस अपना कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो जो आपको नीचे दिख रहा है 2208, दिस इज एक्चुअली माय 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 रियलाइजेशन ऑफ दैट एसकेयू, which is like principal minus the different charges that Amazon has taken from me. Is it clear? Then I can move ahead. Okay. So then what we did was, just to make it very, very simple, I'll tell you it. So this is, e-comically, you can just get started very, very simple way. Username, business name, mobile number, email or password, you can create your account. And I will just go to a dummy account that we have created. I'll start in front of you only. तो हमने क्या किया है इकोनॉमिकली के अंदर, अगर हम जैसे एनालिटिक्स में जाते हैं और पेमेंट रिपोर्ट में जाते हैं, तो अभी फ्लिपकार्ट का पेमेंट रिपोर्ट वुड बी वेरी लाइव वेरी वेरी सून, बट इफ वी जस्ट टॉक अबाउट द अमेजोन का, तो वी आर गोइंग टू अपलोड अ फाइल, अ पेमेंट फाइल। तो हम इसको सीओडी या इलेक्ट्रॉनिक में पहले हमारे को सिलेक्ट करना है, वो इलेक्ट्रॉनिक का था, नाउ वी आर गोइंग टू अपलोड इट। सो जो बिल्कुल हमारे को जो टीएक्सटी फाइल डाउनलोड हुई थी वो हमने अपलोड कर दी है इस पर, और हमने ये सबमिट कर दिया है। It will take some time because it is going to take the file out. It is going to crunch the numbers because the file is very large. In my case, I think it was about 4.5 or 5 MB large. So it is going to take some time. Meanwhile, I can take some questions. Is there any question that I can take? सो सर आप लोग क्या ये अकाउंटिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं कंपनीज को, जो हेल्प करते हैं ये सारे डिकोड करने में, फिर टैक्स कंप्लायंस करने में और अपना अकाउंटिंग करने में भी? सर, हम नहीं करते वो सर्विस प्रोवाइड, हम सिर्फ ये वाला करते हैं, बट इससे मैं आपको बता सकता हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हैं सर। This will help you, the accounts team as well as the CA also to file GSTR1. बट वो सेशन मैं बाद में लूंगा, टैक्स रिपोर्ट का सेशन है वो। तो यहाँ पे हम लोग 100 क्रेडिट्स यूज कर रहे हैं, एट इकोनॉमिकली वी गिव 3000 क्रेडिट्स टू स्टार्ट विद। तो इस पेमेंट में आपके 100 क्रेडिट्स यूज हो जाएंगे। सर वो जो टैक्स वाला जो कंपोनेंट है आपका ना, आपका अकाउंट्स के लिए भी बहुत हम इजी कर सकते हैं इकोनॉमिकली के थ्रू, बट दैट सेशन आई टेक मे बी लेटर। और मे बी मयंक, आप सुदीप जी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स ले सकते हैं, मे बी यू कैन गेट इन टच विद हिम टू मेक हिम अंडरस्टैंड दैट लेटर आफ्टर द सेशन। Uh, yeah, sure, sir. Sure. तो वो आपको ना बहुत इजी जीएसटी वाइज, अलग अलग जीएसटी वाइज आपके पास GSTR1 रिपोर्ट आ जाएगी, जो आप अपने सीईओ को दे सकते हो, या अगर आप आपका अकाउंटेंट खुद ही उसको करता है, तो ही कैन फाइल GSTR1 रिपोर्ट यूजिंग दैट रिपोर्ट। And plus, we are also going to give you very easy to understand the accounting SQ wise transaction also, that can be directly manually entered in very less time directly there. तो अब ये देखिए जैसे अपलोड हो गया फाइल, सो वी हैव 3 टाइप ऑफ रिपोर्ट्स हियर, द प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट, द मिसलेनियस एंड द ऑर्डर आईडी वाइज पेमेंट रिपोर्ट। तो हमने जितने भी फील्ड्स थे, जितनी भी उसके अंदर नंबर्स थे या पेमेंट्स थी, हमने उनको 3 रिपोर्ट्स में बांट दिया है। या जो भी नंबर है, जो भी फिगर है जो अमेजोन ने आपको दिया या आपसे लिया, वो या तो प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट में आएगा या ऑर्डर आईडी वाइज पेमेंट रिपोर्ट में भी आएगा। और अगर प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं आ रहा या ऑर्डर आईडी वाइज में नहीं आ रहा, तो वो मिसलेनियस रिपोर्ट में आएगा। तो हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट दिखाता हूँ।
तो I will select all SKUs here. ये देखिए, तो अगर आप देखेंगे जितने भी हमारे पास फील्ड्स थे, जैसे प्रिंसिपल, कमीशन, FBA पिक एंड पैक फी, FBA वेट हैंडलिंग फी, क्लोजिंग फी, शिपिंग, चार्ज बैक, GST के अलावा जितनी भी फील्ड्स थी, क्योंकि GST जो है या टैक्स की जो फील्ड्स हैं, दे डू नॉट हेल्प अस टू कैलकुलेट कि मेरे को प्रोडक्ट का रियलाइजेशन कितना आ रहा है, तो इसलिए हमने वो पहले से ही अनसिलेक्ट कर रखी हैं। पर अगर कोई नई फील्ड होती है और आप देखना चाहते हैं कि उससे मेरा क्या इफेक्ट आता है, तो वो भी आप कैलकुलेशन में लेने के लिए उसको सिलेक्ट या डीसिलेक्ट कर सकते हैं। पर मैं एडवाइस करूंगा कि ना करें, क्योंकि हमने ऑलरेडी वो फील्ड सिलेक्ट कर रखी है प्री सिलेक्टेड, जिनसे आपका ये चीज कैलकुलेट हो जाता है। तो अगर आप देखेंगे इस पेमेंट रिपोर्ट के हिसाब से, मुझे जो है 16,10,000 रुपया मेरे को मिला है, और मेरा यूनिट रियलाइजेशन जो है 1,720 रुपए का है। For SKU1 it is 911, for SKU2 it is 2301, for SKU3 it is 2084। तो आपको एग्जैक्टली ये पता चल गया कि भाई ये दो SKU3 पे मेरे को 2,084 रुपये नेट मिलता है अमेजोन की तरफ से, और ये मेरा सपोज 1900 रुपये में खरीद रहा हूँ। तो आपको ये पता चल गया कि मेरे को यहाँ पे 284 रुपये मेरे को बच रहा है जो अमेजोन दे रहा है। अब मेरे लोकल खर्चे कितने हैं, ट्रांसपोर्ट के खर्चे कितने हैं, ऑफिस के चलाने के खर्चे कितने हैं, तो वो सारे आप जब माइनस करते हैं तो आप इसको देख सकते हैं। अगर मैं क्लिक करूंगा डिटेल्ड रिपोर्ट को, तो डिटेल्ड रिपोर्ट जो है, क्योंकि सबसे पहले ऑर्डर्स में बटा हुआ है कि भाई ऑर्डर्स और फिर माइनस द रिफंड्स। तो ये जो ऊपर आपने समरी देखी, इट वाज द ऑर्डर्स माइनस रिफंड। तो अगर आप देखेंगे कि ऑर्डर्स में आपको पैसे मिले थे 18 लाख, 18,38,232, क्वांटिटी 1038 की आपने सेल करी थी, यूनिट रियलाइजेशन आपकी बनती है 1770। सिमिलरली अगर आप देखेंगे SKU3 की अगर हम बात करें, 7,81,000 के करीब आपको अमेजोन ने पेमेंट करी, क्वांटिटी 367 आपकी सेल थी, तो यूनिट रियलाइजेशन जो है आपकी 2128 के करीब बनी वो, ठीक है। बट एक इसमें रिफंड का भी कंपोनेंट था। तो रिफंड के अंदर व्हाट हैपेंस इज कि सब कुछ रिवर्स हो जाता है। तो जो प्रिंसिपल आपको आ रहा था वो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, जो कमीशन माइनस हो रही थी यहाँ पे प्लस हो जाएगी, जो फिक्स क्लोजिंग फी ऑर्डर्स में माइनस हो रही थी वो यहाँ पे प्लस हो जाएगी, एंड शिपिंग और शिपिंग डिस्काउंट भी अलग अलग चलेगा इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो जो रिफंड है वो आपको माइनस करेगा सारी चीजें, कि भाई आपके रफली अराउंड 102 रिफंड्स क्वांटिटी के हुए हैं। रिफंड्स जो हैं ये वो कैंसिलेशंस हैं, दीज कुड बी द कैंसिलेशंस व्हिच हैव बीन डन बाय द कस्टमर आफ्टर रिसीविंग, और दे आर द कुरियर कैंसिलेशंस आल्सो जो हो जाती है। तो कुछ अमाउंट जो है अमेजोन जो है आपको बाद में वापस करता है। अगर आप FBA के थ्रू भेज रहे होते हो, तो जैसे अगर सपोज कुरियर कैंसिलेशन हुआ, तो उसका जो शिपमेंट या जो वेट हैंडलिंग का फी है, वो वेट हैंडलिंग का फी प्लस में बाद में आता है, और वो SKU को मैप नहीं करते हैं, तो इस वजह से वो इस रिपोर्ट में नहीं दिखेगा। तो आप अगर ऑर्डर में से रिफंड माइनस करेंगे तो यू विल क्लियरली नो कि आपकी समरी के हिसाब से दिस इज द समरी रिपोर्ट दैट यू शुड बी लुकिंग एट, वेरिन आपको SKU वाइज आपको पता चल रहा है कि SKU1 में आप कितना बना रहे हैं, 2 में कितना और 3 में कितना बना रहे हैं। If I go to the order ID wise payment report, same thing, but what we have done here is कि अगर हम जैसे SKU3 के नीचे इसको खोलकर देखते हैं, तो order ID wise I will come to know कि कौन से ऑर्डर के अंदर जो है मेरे को कितना प्रिंसिपल मिला है और कितना कमीशन मिला है। इसके अंदर मैंने 2-3 SKUs मिक्स करके SKU3 बनाया है, तो आपको ये प्रिंसिपल अलग अलग दिख रहा है। बट अदरवाइज इट इज लाइक मोस्टली 2363 यू आर गेटिंग, एंड मोस्टली द कमीशंस आर बीइंग चार्ज एट ऑलमोस्ट द सेम रेट। तो आपको यहीं से ना एक्सेप्शन वाइज आपको पता चल जाएगा कि भाई मेरा कौन से ऑर्डर में सही पेमेंट आया है या नहीं आया है। तो you can see all the orders, and the best part about this is that all these things you can download। तो आप डाउनलोड करोगे तो बहुत सिंपल एक्सेल बन के निकल जाएगी, जैसे आपको दिख रही है, जैसे अमेजोन की रिपोर्ट में आती है वैसे नहीं, बट जैसे यहाँ पर दिख रही है आपको, उसी हिसाब से आपकी एक्सेल डाउनलोड होकर आ जाएगी।
एंड इन मिसलेनियस रिपोर्ट दीज आर दी डिफरेंट थिंग्स। जैसे हमने इस हफ्ते के अंदर जो हमारे को कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग दिख रहा है रफली अराउंड 72,000 रुपीज़ का दिख रहा है। तो ये अमेजोन ने हमसे चार्ज किया है। FBA वेट हैंडलिंग फी और पिक एंड पैक फी अगर ये प्लस में दिख रहा है तो ये फायदे का सौदा है। तो इवन दो FBA वेट हैंडलिंग है पर ये वापस आया है, तो ये 3,900 वापस आया है, 754 आप पे वापस आया है। मिसलेनियस में इसलिए दिख रहा है क्योंकि इन्होंने विदाउट SKU के नाम से इसको एट्रीब्यूशन दिया है, कोई SKU को एट्रीब्यूशन नहीं दिया है इन्होंने, इस वजह से ये सेपरेट दिख रहा है। सेटलमेंट्स अगर आप देखेंगे तो दिस इज वन सेटलमेंट दैट वी हैव पुट। अगर मैं सेटलमेंट डेट के हिसाब से देखता हूँ, आई सर्च, सो दिस सेटलमेंट वी कैन सी, ये सेटलमेंट जो है ऑलरेडी हम लोगों ने डाल दिया है, ये अपलोड कर दी है, जिसका हमने देख लिया है। धीरे धीरे करके जब प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट में आप लोग जब सेटलमेंट डेट पे जैसे जैसे अगर आप बहुत डिसिप्लिन तरीके से इसमें चीज़ें डालते रहेंगे तो आप लंबे एक ड्यूरेशन की भी जो है अपनी सेटलमेंट और SKU वाइज प्रॉफिटेबिलिटी देख सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? Sir, we have a question from Please. Nishit, from Nishit Agarwal. हाँ निशित जी पूछिए। From in chat, they have put their question in chat. एक मिनट में देख लेता हूँ। Different waivers that we can request, it is a topic which is outside the agenda. निशित जी आप मेरे से अलग से फोन पे इस पे बात करके पूछ सकते हैं, then I'll speak about it. It won't be right for me to speak on this forum. I'm available on the call. I am just writing my phone number on the call. Is it visible, my phone number? Yes, sir. It is. So you can call me, I'll answer that separately. On this payment report thing, so I'll request you guys, to support us by registering on eComically. Very simple to register. Currently, we have the Amazon tax file and the Amazon payment report. We are giving free credits, and then we'll follow it up with a referral program also. कि आपके credits कभी खत्म ही नहीं होंगे. So I request you to please register with eComically, and very soon, within next 10 days, we'll have the Flipkart payment file thing also and Flipkart tax report thing also. So it will make your accounting worries go, the tax report. SKU wise आपको profitability पता चल जाएगी, Amazon, Flipkart कहाँ कहाँ पे पैसे ले रहे हैं आपसे वो पता चल जाएगा, ऑर्डर ID वाइज आपको पेमेंट्स पता चल जाएंगी, तो यू विल कम टू नो कि कहीं आप एक्सेप्शन मैनेजमेंट कर सकते हैं। नहीं तो कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि भाई ये चार्जेस कहाँ लगे कहाँ नहीं लगे। यू गाइस कैन मैनेज द एक्सेप्शंस व्हिच आर कमिंग। सो वी विल thank you man for putting up the sign up link. So I'll request you guys to sign up and do support us, because we are making it easy for the e-commerce sellers to exactly know what is happening in their account. It is 3,000 credits are complimentary. For payment we just take about 100 credits, and for tax report we take about, I think, 400 if I'm not wrong, but referral program will ensure that you will keep on getting the credits. So safety claims amount, okay, so Nisarg ji, over time we are going to come out with that also. Right now we do not have in eComically, but the safety claims amount, they are very much there, and I will show you also in which report to find out. We are working on multiple reports, पर मैं जब तक हम नहीं उसको लाते, ऐसा नहीं है that I will hide knowledge from you.
आप मेरे को निसर्ग जी मे बी मंडे वी कैन कनेक्ट एंड आई विल एग्जैक्टली शो यू इन विच रिपोर्ट ऑफ Amazon यू कैन फाइंड इट आउट एंड आई विल ऑल्सो टेल यू कि आप वो कैसे देख सकते हैं कि भाई हमारे को इसका मिलना चाहिए था या नहीं मिलना चाहिए था, और जिसका मिलना चाहिए था वो सबका मिल गया कि नहीं मिल गया. आई विल टेल यू दैट ऑल्सो, बट मे बी ऑन मंडे I'll be back with you. E-comically में नहीं है अभी, but we are going to surely do it. So the immediate things were हमारे लिए tax report, payment report, followed up with the campaigns report, and once we are done with that, then we are going to go to the inventory modules also. So safety, what happens is that जब आपको सेफ्टी वो मिलता है ना, तो यू गेट इट अगेंस्ट अ ऑर्डर आईडी एंड अगेंस्ट द SKU. So what happens is that those amounts are added back, into the payment sheet, or they are kind of deducted. अगर आपको जैसे कोई क्लेम मिला और आपसे उनको डिडक्शन करनी है, तो वो उस क्लेम में से डिडक्ट हो जाता है, और वो क्लेम जो है उस डिडक्शन में से माइनस हो जाता है, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाता है. एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ द पेमेंट रिपोर्ट, क्योंकि हमने उसको, हाँ, फ्लिपकार्ट में देते हैं, SPF नॉर्मल रिपोर्ट में ही दे देते हैं, तो इट बिकम्स इजी टू डू दैट. इसके अंदर वो ऑर्डर वाइज आता है. कई बार अदर्स में आता है, अगर एक डिफरेंट टाइप का SPF हो, कई बार जो है उसी के अंदर आ जाता है आपका, कि एज अ रिफंड टू दी ऑर्डर ID दैट दे हैव गिवन टू यू. या सो व्हाट हैपेंस इज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू, जो आपने बोला है. तो इसलिए हम कह रहे हैं कि हम जितना ज़्यादा डेटा E-comically में इकट्ठा करते चले जाएंगे, तो जैसे जैसे ड्यूरेशन जो है अगर वो बढ़ती चली जाएगी, तो वो कभी ना कभी वो ऑर्डर जो है, सपोज वीक 1 के अंदर ऑर्डर था, वीक 2 में रिफंड हुआ और वीक 4 में उसका अगर क्लेम मिला, तो अगर आपने वीक वाइज 4 वीक्स की रिपोर्ट्स इसके अंदर अपलोड कर दी होंगी, तो यू विल बी एबल टू देन बेसिकली सी इट अगेंस्ट द ऑर्डर ऑल्सो. बट जब तक वो अलग अलग पेमेंट साइकिल्स का पार्ट रहेगा, तब तक हम उसका कुछ नहीं कर पाएंगे. ओके, एनी अदर क्वेश्चन? सो ओके, थैंक यू. सो मयंक, सुदीप जी को रिकॉर्डिंग देनी है, और आप बात भी कर लेना. आई थिंक विद निसर्ग ऑल्सो जस्ट कनेक्ट, एंड विद निशित ऑल्सो प्लीज कनेक्ट. Yeah, sure, sir. Sure. Okay. So we'll end with the call, and very soon just share the recording. I'll share it with you as soon as I upload it on the YouTube. Share it with all them, man. Sure. Okay, Sure. thank you all. Thank you for your time. Bye-bye. थैंक यू सर.